Hello, Assalamu alaikum. I'm your general science teacher. Welcome to Abstract Virtual School. And today we are going to start our chapter, which is Energy Resources, Unit number 4, page number 47 to 49, in which we are going to cover the topics related to conversion of energy converters, which devices are used to convert one type of energy to another type. Then we are going to discuss the energy sources and especially the burning fossil fuels. First, the energy resources. As we previous lecture, we discussed that the work is done when the energy is consumed, and the SI unit of the energy is joules, or we can also measure the energy in kilojoules and megajoules depending upon the amount of the energy. The main energy source is sun, which provides the light and heat energy, and which is converted, then it's converted into different remaining type by the process of different like the process of photosynthesis, chemosynthesis, etc. The type of the energy which we discussed in our previous lecture are chemical energy, potential energy, kinetic energy, light, thermal, sound, and electrical energy. The chemical energy is the energy which is stored in the form of bond. Potential energy is the energy which is stored in a body due to distortion or the forces applied, and it leads to the change in the distance within the body. And the kinetic energy is the energy which is stored in a body due to the its motion. And the light energy, electromagnetic energy, and thermal energy is energy which is produced in a body due to the vibration of the atoms and molecules. Sound energy is the wave energy which is transferred from the source to the resources. And through this process, the compression and refractions are produced, and these eruption or the waves are received by our ear, and we detect the sound. And last one is electrical energy, which is the energy which is stored in a body due to the motion of charges. For example, in the circuit, the battery produce a negative charge which travel from the one section to another section, and there are different converter devices which are used to convert this electrical energy into different energy types, but here it's converted into the light energy. Then we know the chemical energy in the burning converted into heat and light and sound energy. These remaining three are the mainly types of the potential energy, how the distortion cause a body to work later on. Then the conversion energy is the topic number, page number 42. The first, we have discussed a different forces which we need to again remind ourselves to move on to our topic. First is the gravitation energy, F is equal to G M divided by R square. ये अट्रैक्शन फोर्स थी जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रोड्यूस होती है. जो वी ऑब्जेक्ट डेफिनेटली मास में ज़्यादा होता है, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स उसकी साइड पर डायरेक्शन उसकी शो की जाती है. जैसे हम लोगों ने एग्जांपल उसमें गैलेक्सीज का लिया था, और हमारी ग्रेविटेशन एनर्जी जो फोर्स है वो हमारी ज़मीन की टुवर्ड सन है, और मून की टुवर्ड जो है वो हमारी अर्थ की तरफ है. और हम लोग चूँकि मास में कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हमारे ऊपर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करती है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम अस टू टुवर्ड अर्थ होती है. इसमें हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि ग्रेविटेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है. मतलब अब मैसेज को बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज़ करती जाएगी, और अगर उसके बीच में डिस्टेंस को इन्हांस करते जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है. Kinetic energy, due to motion the energy is stored in a body. इसकी इक्वेशन हम लोगों ने 1/2 mv स्क्वायर पढ़ा था. m हमारे पास जो है वो इसका मास, v इसकी स्पीड को शो करता है. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितना ज़्यादा उसका मास होगा, किनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है. पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने mgh किया था. h हमारे पास उसकी इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्टेंस है. जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है. यानी कि स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन को आप नोट करें, उसके बाद आप जितना ही उसको ज़्यादा पुश करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप उस डेफिनेटली पुल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है. जितना आप h कवर करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी.
तो अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से एक टाइप ऑफ एनर्जी सेकंड दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे मसल्स के अंदर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो है फूड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है वो स्टोर्ड होती है, और वो केमिकल बॉन्ड जब हम मसल्स को मूव करवाते हैं तो वो केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकेज के नतीजे में हमारे पास वो एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कि हमारे पास आगे हमारे पास मसल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मसल्स जब मूव करते हैं तो हमारे हैंड में जो हमारे पास बॉल है उसकी जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, उसकी वजह से चूँकि वो कुछ डिस्टेंस को कवर करना शुरू कर देते हैं जब हम उसको अपवर्ड मूव करते हैं, तो चूँकि हमारे पास एच उसका इन्हांस होता जा रहा है, तो लिहाजा उसे mgh के लिहाज से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक हाइट को अटेंड कर लेने के बाद जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, बॉल जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। उसके बाद वो हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब चूँकि उसकी वेलोसिटी इन्हांस होते जा रही है, तो वेलोसिटी जब इन्हांस होना शुरू हो जाती है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और उसकी अमाउंट जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करती जाएगी उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। तो दैट्स मीन कि जब वो अपनी ज़मीन पर स्ट्राइक करेगी तो उस वक्त हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में होगी। उसके बाद जब हमारे पास बॉल जो है ज़मीन पे जब हिट करती है तो हिट करने के नतीजे में जो बॉल है वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। साथ में अगर बॉल के उस एरिया को टच किया जाए तो वहाँ वो हमारे पास थोड़ा हॉट भी होता है। तो डेट्स मीन कि हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, साउंड में भी कन्वर्ट हो रही है। इसकी बेसिस पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैंट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन इनटू अनदर फॉर्म। यानी कि अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन पे अगर आपके पास 5 जूल थी, जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आप काउंट करेंगे तो 5 जूल होगी, और जब वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक करती है तब उसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी वो काउंट करें तो वो भी 5 जूल होगी। और जब वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, मीन कि वो साउंड में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल में कन्वर्ट हो रही है, तो थर्मल एनर्जी और साउंड एनर्जी को की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास 5 जूल हुई होती है। दैट्स मीन कि ड्यूरिंग कन्वर्जन हमारे पास जो है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट होती है, लेकिन वो हमारे पास आमतौर पे जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, और ना ही आप उसको खुद कहीं से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर सिस्टम के अंदर 5 जूल थी तो वो 6 जूल नहीं होगी, या 7 जूल नहीं होगी, या 5 जूल से वो 3 जूल या 2 जूल नहीं होती, बल्कि वो हमेशा उसकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। जब भी वो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से साउंड और थर्मल एनर्जी के बीच में कन्वर्जन को डिस्कस किया, जब आप इसकी टोटल अमाउंट को काउंट करेंगे तो वो हमेशा आपके पास सेम रहती है। एनर्जी कन्वर्टर्स में हमारे पास जब भी आप कोई भी डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो उसको डिफरेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो जितना आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो अगर आप उस आगे आपने बल्ब यूज़ किया हुआ एज अ एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस के तौर पर, तो वो लाइट में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो जितना आप इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा लाइट आपके पास प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से हमने डिफरेंट लाइफ में हम लोग जो प्रोसेसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एनर्जी कन्वर्टर्स में हमारे पास एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर होते हैं, लेकिन जो कॉमनली हमारे पास एग्जांपल्स हैं हमारे पास वही आपकी बुक में बहुत जो डिस्कस किए गए हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी में, और आप अपने बालों को खुश करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कार इंजन के अंदर जो आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल के अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो केमिकल एनर्जी जो है जब हमारे पास इंजन में ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पे कंबशन के प्रोसेस के नतीजे में, कंबशन हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास बर्निंग ऑफ हमारे पास फ्यूल्स को हम कंबशन का प्रोसेस कहते हैं, तो हमारे पास जो वो कंबशन के प्रोसेस के नतीजे में केमिकल एनर्जी में जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और वो थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे पास कार है उसको मूव करवाने में हमारी हेल्प करती है। तो डेट्स मीन कि वो थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
इसी तरह से हम डेली लाइफ में जो माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट अनाउंसमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं मॉस्क्स में, तो वो हमारे पास साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो जो स्पीकर है वो हमारा माइक्रोफोन जो है वो आगे हमारे साउंड को एम्पलीफायर की तरफ भेजता है। वो एम्पलीफायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन्हांस करते हुए उसको साउंड एनर्जी में अगेन कन्वर्ट कर देते हैं, और स्पीकर उस साउंड एनर्जी को हमारे एयर में प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन माइक्रोफोन मेनली जो है वो साउंड एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। गैस स्टोव हमारे पास केमिकल एनर्जी जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन करने के नतीजे में थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम जो है वो कुकिंग के प्रोसेस के लिए या हीटर के तौर में हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं। टेलीविज़न में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आप करंट यूज़ कर रहे हैं, उस करंट के नतीजे में जो आपके पास टेलीविज़न है वो आपके पास साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और आपकी एनर्जी कन्वर्टर जो है वो हमारे पास एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसमें आपको एनर्जी सोर्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास एनर्जी की इमर्शन होती है। एनर्जी रिसोर्सेज जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें मेन रिसोर्सेज ऑफ थर्मल एनर्जी जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, चारकोल है, लिक्विड पेट्रोलियम है, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको दिया आपके पास जो डिफरेंट आपके पास मज़ीद यानी कि वुड है आप उसको यूज़ करते हैं, और इसमें कंबशन के प्रोसेस में आप क्या कहते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी है थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये डेट्स में कि जो आपका जो बर्निंग का प्रोसेस कर रहे हो वो केमिकल चेंज है, और उसके नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास केमिकल चेंज है, और वो आप उसको दोबारा जो हमारे पास उसको रिवर्स नहीं कर सकती, यानी कि नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो डेट्स में जो कंबशन है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने का नेम है। और सोर्सेज ऑफ थर्मल एनर्जी हमने अभी डिस्कस किए कि वुड और चारकोल हैं, कोल और कोक है, और लिक्विड पेट्रोलियम है जिसको हम एलपीजी भी कहते हैं, और ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम आमतौर पर एनर्जी सोर्सेज के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये जो पीछे हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, और हमारे पास वुड, कोल, चारकोल, लिक्विड पेट्रोलियम, ऑयल, ये हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास पहले मतलब ज़मीन के अंदर जब दब जाते हैं तो केमिकल कन्वर्जन के नतीजे में हमारे पास ये कंपोनेंट हासिल होते हैं। दैट्स मीन कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो हमारे पास एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, जब ज़मीन के अंदर हमारे डेफिनेटली हमारे पास आप उनको दफना देते हैं तो काफ़ी अरसे के बाद डिकम्पोजिशन के बजाय अगर उनके ऊपर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दो तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो हमारे पास केमिकल रिसोर्सेज यानी कि वो चारकोल, कोक में और लिक्विड पेट्रोलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो डेट्स मीन कि हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज अभी हमने डिस्कस किए हैं, चूँकि इनको हासिल करने में हमारे पास सालों साल सेंचुरीज लग जाती हैं, और बाज़ दफ़ा हमारे पास थाउजेंड ऑफ ईयर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि हमारे पास जो ऑयल प्रोड्यूस हो। तो इसी वजह से ये रिसोर्सेज चूँकि ईज़िली अवेलेबल नहीं होते, आप इसको दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते, इसी वजह से इन रिसोर्सेज के लिए वर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वर्ड कहा जाता है। चूँकि ये रिसोर्सेज आप लगातार यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो डेफिनेटली कुछ अर्से के बाद ही आपके कंज्यूम हो जाएंगे, आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो इट्स बेस्ट कि आप एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो आप दूसरे तलाश करना शुरू कर दें। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो रिसोर्सेज जो आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, जिनको आप कन्वर्ट करके आप अपने लाइफ जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सकते हो, उसमें से एक जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपके पास करंट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, डैम्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विंड जो है वो आपके पास विंड को यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट कर सकते हैं। बायोमास की जब डिकम्पोजिशन होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, उन गैसेस को बर्न्स करके भी आप इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि थर्मल प्लांट्स प्रोड्यूस लगा सकते हैं। सोलर यानी कि लाइट एनर्जी को भी सोलर पैनल्स के थ्रू आप इसको इलेक्ट्रिकल करंट में तब्दील कर सकते हैं। रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे आपके पास प्लास्टिक्स हैं, आप प्लास्टिक वगैरह को बर्न करके जो आपके पास हीट एनर्जी हासिल हो रही है आप उसके थ्रू भी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो आप रिसाइकलिंग के प्रोसेस के नतीजे में भी आप जो है वो डेफिनेटली आपके पास वो रिसोर्सेज आपको बार बार अवेलेबल हो जाती हैं। आप चीज़ों को बार बार यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिसाइकलिंग के नतीजे में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद वेव जो समंदर के अंदर ही पैदा होती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट के नतीजे में भी आप उस वेव की मूवमेंट्स को भी, जिसको हम टाइडल मूवमेंट्स भी कहते हैं, आप आराम से जो है वो करंट को जनरेट कर सकते हैं।
टाइडल में जैसे हम कहते हैं जब भी सनस्क्लेप होता है या ऐसी कंडीशन में ये जो हम लोग ये कहते हैं चांद गिरन या सूरज गिरन, इन तीनों के नतीजे में या टाइडल इफेक्ट में अगर हम नोट करें कि समंदर के किनारे, तो हम देखते हैं कि दिन के वक्त लहरें बहुत नीचे होती हैं, लेकिन जैसे रात का वक्त बढ़ता जाता है तो चूँकि चांद हमारे बहुत ज़्यादा करीब है तो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देता है। तो वाटर के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के नतीजे में आपकी जो डैम्स हैं उसमें पानी भर जाता है। आप दोबारा से यानी कि रात के वक्त अगर आप डैम्स के दरवाजे खोल लेंगे तो समंदर से जो दरिया है आपके जो है वो सोर्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और दिन के वक्त आप उसके गेट्स को दोबारा ओपन कर दे तो वो आपके वो सोर्स से दोबारा से जो है ओशन में मूव कर देगा। तो ये जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है इसके नतीजे में भी आप टर्बाइंस को मूव करवा के इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी के नतीजे में एटम के ब्रेक डाउन करने के नतीजे में हीट एनर्जी, और इस हीट एनर्जी को आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जियोथर्मल एनर्जी है, आप इसको भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए भी, चूँकि ये आपके पास अर्थ के लोअर सरफेस में एग्जिस्ट कर रही हैं मैग्मा जो कि हाई टेम्परेचर पर मौजूद है, आप वाटर ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं और वाटर जो है वो डेफिनेटली जब मैग्मा वाले एरिया में पहुंचता है तो पानी गर्म होकर अपर डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर वहाँ पे आप टर्बाइंस लगा देंगे तो उनके वाटर के अपर मूवमेंट के नीचे में टर्बाइंस चलेंगे और आपके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। और ठंडे पानी की चूँकि कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होगी तो आप इन कॉन्टीन्यूस मूवमेंट को यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, आप उसको यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। ये आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप ईज़िली आपके पास अवेलेबल हैं और आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास एयर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दिस गैसेस एक्ट एज इंसुलेटर हम लोगों ने जो मेटल्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो एलिमेंट है जो कि ना ही करंट को पास ऑन होने देते हैं ना ही हीट को पास ऑन देते हैं। इसका मतलब है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एज अ इंसुलेटर एक्ट कर रहे हैं, वो हीट वेव्स को जो है वो ट्रांसफ़र होने नहीं देते। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। लाइट वेव्स एब्जॉर्ब इन द एयर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द अर्थ एंड गेट कन्वर्टेड इनटू हीट वेव्स। जब भी सोलर से हमारे पास लाइट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर पार्टिकल्स और हमारे अर्थ के साथ कोलाइड करने के नतीजे में जिनकी हमारे पास जो लाइट एनर्जी जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा थी वो हाई लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि हीट वेव्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ये हीट वेव्स जब वापस ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर बैक यानी कि स्पेस में जाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमने थर्मल के लॉस पढ़े थे कि चीज़ हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। तो जब रात के वक्त सूरज अवेलेबल नहीं है जो एनर्जी के तौर पे, तो ऐसी कंडीशन में रात के वक्त हमारी ज़मीन से जो एनर्जी है वो आसमान की तरफ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ज़मीन हद से ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, डेफिनेटली फ्रीजिंग इफेक्ट कॉज करेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बाय नेचर हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स और मीथेन गैसेस मौजूद हैं। ये मीथेन गैसेस जो हैं वो हीट वेव्स को आसमान की तरफ वापस स्पेस में जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, जो कि लिविंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एनर्जी कन्वर्शन लीव्स द हीट एनर्जी विद द लेसर अमाउंट विद लार्ज वेव। डेफिनेटली इसके नतीजे में चूँकि हमारे पास हीट वेव्स जो हैं वो लाइट वेव्स जो हैं वो डेफिनेटली जो पार्टिकल है वो भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपकी प्लांट हैं वो भी उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हीट की अमाउंट होगी आपकी लाइट की जो एनर्जी है उससे यहाँ थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जब अगर टोटल एनर्जी जो कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है उसको आप सम अप करेंगे तो वो सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन चूँकि लाइट जो एनर्जी है वो ही आगे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर उसमें से हम एक फॉर्म की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसकी अमाउंट आपके लाइट एनर्जी से कम होगी। इस इम्पैक्ट को जिसमें हमारे पास अर्थ जो है वो वार्म अप होती है, जब भी लाइट वेव्स हमारे पास अर्थ की तरफ मूव कर रही हैं और वो हीट में कन्वर्ट होने के बाद ज़मीन को गर्म कर रही हैं, इस इम्पैक्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास द ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कहलाता है। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़मीन में अर्थ की जो टेम्परेचर है उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रात को टेम्परेचर इतना बिलो ना हो जाए कि फ्रीजिंग इफेक्ट की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ एक्सटेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ वेव्स को ये जाने देगा, मेजॉरिटी को ये ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन को गर्म कर देती हैं। लेकिन
अगर इन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को आप बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में हीट जो है वो कम्प्लीटली जब ज़मीन के अंदर रिटेन करेगी तो अभी ज़मीन का टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे कूल डाउन नहीं हो पाएगा। कितने में सन जो है वो अगेन अपनी सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा थ्रू रेडिएशन। तो इसके नतीजे में ज़मीन दिन ब दिन गर्म होना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसी कोई भी रिसोर्सेज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को और हमारे पास मीथेन गैसेस को, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में ज़मीन को गर्म करती जा रही हैं, अगर एक लेवल से एक्सटेंड करेंगी तो ज़मीन हद से ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ही है जैसे कि हम ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं, हमें सर्दी लगती है, हम ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्लैंकेट्स के अमाउंट्स को बढ़ाते जाएंगे तो वो शुरू में तो आपके पास प्लेजेंट इफेक्ट कॉज करेगा, लेकिन जब उसके अमाउंट को आप हद से ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है तो वो आपके पास वार्मनेस कॉज करने का शुरू कर देता है और आपको गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। यही इफेक्ट हमारे पास ये ग्रीन हाउस गैसेज इम्पैक्ट कॉज करती हैं कि सम एक्सटेंड तक ये एसेंशियल है, लेकिन उससे अब एक्सटेंड करेंगे तो ये ज़मीन की गर्माइश को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर देगा। टेम्परेचर जो है वो ज़मीन का बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से गर्मियाँ ज़्यादा होती जाएंगी और सर्दियों की ड्यूरेशन कम से कम होना शुरू हो जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जब हमारे पास ज़्यादा क्यों हो रही है, जब आप दरख्त काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जब बढ़ेगी या कार्बन मोनो के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनो की अमाउंट आप एयर को बढ़ाते जा रहे हैं, मीथेन गैस जो है आप इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप रिलीज़ करते जा रहे हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमें पता है कि आइस कैप्स मेल्ट होने के नतीजे में फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल है, और अगर आइस कैप्स के नतीजे में हमारे पास अगर ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएंगे तो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज भी कम होना शुरू हो जाएंगे। अब डेफिनेटली आइस कैप जब मेल्ट होंगे तो पानी कहाँ जाता है, डेफिनेटली वो पानी हमारे पास रिवर्स के थ्रू हमारे पास ओशन में जाता है, तो ओशन का जो लेवल है वो दिन ब दिन हाई होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से आइलैंड्स हैं जिनके जो कि सी लेवल अबव होने की वजह से कम्प्लीटली जो है वो ज़मीन के अंदर समंदर के अंदर जा चुके हैं। इसमें जो है आपका मालदीव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जापान जो है वो उसका जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो भी दिन ब दिन डिक्रीज इस वजह से ही हो रहा है कि सी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से ऐसे से जो आइलैंड्स है वो डिसअपीयर होते जा रहे हैं। वेदर पैटर्न चेंज, डेफिनेटली गर्मी की ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, सर्दियों की ड्यूरेशन कम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट भी होते हैं कुछ इलाकों में, लेकिन कुछ इलाकों में इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे। लेकिन जैसे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे गर्मी की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाने की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों की तरफ अगर थोड़े से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हो सकता है जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होने की वजह से अगर प्लांट नहीं जो है प्रोड्यूस हो रहे थे या एनिमल वहाँ पे हैबिटेट के तौर पे वहाँ नहीं रह पा रहे थे, अब वो रहना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके इम्पैक्ट की वजह से जो हमारे पास फ्रेश वाटर की जो रिसोर्सेज है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। मोर फ्लडिंग के नतीजे में हम लोगों ने अभी कहा कि जब आइस कैप के हमारे पास मेल्टिंग के नतीजे में होगी तो वो पानी हमारे पास कहाँ जाएगा, डेफिनेटली रिवर्स में, और रिवर्स के नतीजे में हम जब रिवर्स में जाएगा तो फ्लडिंग भी ज़्यादा काज होगी। इसके अलावा मोर डेजर्ट एरिया होंगे तो उसमें आपने नोट किया होगा जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं वो जगह थोड़ी ठंडी भी होती है, वहाँ बारिशें भी ज़्यादा होंगी। तो डेफिनेटली अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो आपके पास रेनफॉल की अमाउंट कम हो जाएगी और डेजर्ट आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ड्राउट हम खुश्क साली को कहते हैं, यानी कि पानी के इतनी अमाउंट ना प्रोवाइड होना कि जो कि लाइफ के लिए ज़्यादा कि सस्टेनेबल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसके मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप डेफिनेटली वाटरफॉल हमारा रेनफॉल इतना इनफ अमाउंट में नहीं होता तो डेफिनेटली ड्राउट कॉज करेगा। डिक्रीज़ इन द क्रॉप यील्ड, डेफिनेटली आपके पास जो क्रॉप्स की जो अमाउंट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि मौसम जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह से स्प्रेड ऑफ आपके पास पेस्ट लाइक मॉस्कीटोज आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। जैसे गर्मी वाले इलाके में ये गर्मी इलाकों में जो पेस्ट होते हैं वो पहले सर्द इलाकों में नहीं होते, लेकिन जब सर्द इलाकों का मौसम चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, तो डेफिनेटली मॉस्कीटोज की अमाउंट भी वहाँ पे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। मीथेन भी आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज में आता है जो कि प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शन के नतीजे में भी हमारे पास मीथेन गैस जो है इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास मार्शी एरिया है, मार्शी एरिया हम बोलते हैं दलदली इलाके को, जहाँ पे आपके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जब एनिमल डिकम्पोज होते हैं तो ये मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये मीथेन गैस जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर एयर के अंदर जो है वो हमारे पास जब इंट्रोड्यूस हो जाती है तो ये अपवर्ड जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। ओके,
इसके आज के असाइनमेंट के लिहाज से वीक 13 के लिहाज से आप लोगों का पेज नंबर 48 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और पेज नंबर 50 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आप लोगों को नीट कॉपी पे कंप्लीट करना है। इसके साथ जो आप लोगों को असेसमेंट दी गई है, असेसमेंट को भी आप लोगों ने साथ में कंप्लीट करना है। लूज शीट पे हर एक असेसमेंट के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स प्लस आपका नेम, क्लास, सेक्शन, वीक, आपके विजिबल जो आपके पास हेडलाइंस के तौर में बहुत विजिबल करें। और साथ में अगर किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप 8 o'clock to 2 o'clock आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।